Assalamualaikum, Dr. Lance consultant neurophysician, DHP Hospital, Jam. Today we will be discussing very important topic, neuropathic pain. Many of the patients, almost all of the doctors come across in OPD, indoor, outdoor, even in their leisure time. Patient and common people, public, used to ask about their symptoms. So about neuropathic pain, कॉमनली हम देखते हैं कि आउच की कंप्लेंट या पेशेंट के मुंह से अचानक निकल जाता है जब उसको कोई पेन होती है, कुछ उसको फील होता है या कुछ उसको abnormal सेंसेशन आती हैं हाथ में, पाँव में या जिस्म के किसी भी हिस्से में। तो कॉमन सा वर्ड है आउच, ये क्या हुआ? Treating physician should know what is neuropathic pain and what is pain. So starting from pain, it is an unpleasant sensory or emotional experience that may be associated with tissue damage. किसी भी टिश्यू डैमेज के साथ कोई सेंसरी या इमोशनल ट्रॉमा इवन उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं उसको हम पेन कहते हैं। So पेन टाइप्स कितनी हैं? There are major two types of pain: nociceptive pain and neuropathic pain. नोसिसेप्टिव पेन में कि नोसिसेप्टर्स जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, स्किन, मसल्स, जॉइंट्स एंड ऑल ओवर द बॉडी, उनके एक्टिवेशन के साथ, उनके मैसेज रिसीव करने के साथ जो सिम्टम, जो दर्द, जो पेन महसूस होगा उसको हम नोसिसेप्टिव पेन कहेंगे। तो पेरिफेरल नोसिसेप्टर्स ड्यू टू टिश्यू इंजरी और इम्पेंडिंग इंजरी के साथ होंगे। सेकंड टाइप इज न्यूरोपैथिक पेन due to damage of peripheral or central nervous system. There are two types of nervous system: central, brain and spinal cord. Peripheral nervous system means nerves, neuromuscular junction and muscles, and the innervation of the muscle by nerves. So both the peripheral nervous system है. Pain felt by central or peripheral nervous system is neuropathic pain. Signal arise not only from injured axon but also from the intact nociceptors that share the innervation territory of the injured nerve. So जहाँ जहाँ नर्व जा रही है वहाँ पेन महसूस होगी, उसके सिम्टम्स जिसको हम रेफर्ड पेन कहते हैं उसकी फीलिंग्स आती जाएंगी। So this is the pictorial presentation of the different types of pain and their receptors and where the pain feels in case of nociceptor and in case of neuropathic pain. It may be burning sensation, patient आके बताते हैं कि मुझे जलन हो रही है, that can be neuropathic. Stabbing, जैसे कुछ चुभ गया है अचानक से, कोई just like a stab wound, अक्सर आप इमरजेंसी में come across with this word कि कोई चुभ जाना अचानक से, stabbing. Electric shock like sensations हो सकती हैं कि जैसे करंट सा फील होता है। डॉक्टर साहब पेशेंट आके बताते हैं मेरे हाथों पाँव में ऐसे करंट सा चलता रहता है। That is a type of neuropathic pain. So neuropathic pain is initiated or caused by primary lesion or dysfunction in the nervous system. That may be central, that may be peripheral. And pain caused by the disease or lesion of the somatosensory nervous system also causes the neuropathic pain. तो काज क्या है पेन की, होता क्यों है, कौन से एक्सॉन्स हैं जो पेन की वजह बन रहे हैं? इंजरी ऑफ द अनमाइलिनेटेड स्मॉल फाइबर्स, unmyelinated and small myelinated sensory fibers, they cause the neuropathic pain. There are different types of fibers: myelinated, unmyelinated, small, large. लेकिन पेन कौन से, पेन किस वजह से हो रही है? unmyelinated and small myelinated sensory fibers, वो पेन काज करेंगे। There are certain types of diseases in which there is pure demyelination. All of you know there is axon structure, neuron structure, cell body है, उसके एक साइड पे axon है, different dendroids हैं। तो axon उसका मेन जो स्टेम है, उसके ऊपर जो कोटिंग है उसको हम माइलिनेशन कहते हैं। तो अगर सिर्फ demyelination हो रही है, that is a pure demyelination, in certain diseases like Charcot-Marie-Tooth disease, उसमें पेन नहीं होगा, that will be painless. अगर large myelinated fibers affect हो जाएं तो भी पेन नहीं होगा, that will be the painless neuropathy. Like Friedreich ataxia disease है, उसमें पेशेंट के साथ large sensory fibers affect हो जाते हैं, gait ataxia आ जाता है, proprioception, vibration sense loss हो जाती है,
उसमें भी नहीं होगा। पेन कैसे होगा? अगर अनमाइलिनेटेड स्मॉल एंड स्मॉल माइलिनेटेड फाइबर्स अफेक्टेड होंगे। अदर एंटिटी है मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें प्योर आपके मोटर न्यूरॉन जो कि एंटीरियर पार्ट वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हैं या फिर ब्लड सेल मोटर कॉर्टेक्स में मौजूद हैं, उनके अफेक्ट होने से भी पेन नहीं होगा। ऑटोनोमिक फाइबर्स पेनलेस लाइक रॉस सिंड्रोम या प्योर ऑटोनोमिक फेलियर हो जाए, पेनलेस होगा। Degeneration of the unmyelinated and thin myelinated nociceptor fibers generally एनाल्जेसिया, इसके साथ जो है वो एनाल्जेसिया के आपको पेन का एहसास ना हो। हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी टाइप 4, उसमें ये अफेक्टेड होते हैं, एनाल्जेसिया इफेक्ट आता है। So neuropathic pain is caused by rare or disease to the somatosensory nervous system. That may be peripheral, that may be central. Peripheral में होगा आपके plexus, अपर लिम्ब की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस, उससे आगे निकलने वाले नर्व्स, इनर्वेशन टू द मसल्स, कहीं भी इंजरी होगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कंसीडर किया जाएगा, दैट विल कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, दो पार्ट्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन होगी। इसके डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, देयर में भी हाइपरएल्जेसिया एंड एलोडाइनिया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड। हाइपरएल्जेसिया क्या है कि कोई भी पेनफुल स्टिमुलस हो उसके अगेंस्ट इंक्रीज रिस्पॉन्स आ जाए, लाइक आप कोई थॉर्न है, कांटा है, चुभ जाए, पेनफुल स्टिमुलस होता है। लेकिन नॉर्मल एक फीलिंग होती है जैसे थोड़ा सा चुभा दर्द हुआ, एक एबनॉर्मल फीलिंग होती है तो बहुत ज्यादा फीलिंग उसके साथ है, दैट इज हाइपरएल्जेसिया। एलोडाइनिया क्या है? एलोडाइनिया नॉर्मल जो गैजेट्स हैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स उनके साथ पेन होना शुरू हो जाए, लाइक आपने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, आपने ग्लासेस पहने हुए हैं, नॉर्मल से कुछ नहीं होता। एवरी पर्सन इज बीइंग यूजिंग दीज गैजेट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। चुभने लग जाए, कपड़े पहने हुए हैं और उससे पेन होना शुरू हो जाए, चुभने लग जाए, जैसे स्किन के साथ टच हो पेन होना शुरू हो जाए। रिस्ट वॉच पहनी हुई है, अब नॉर्मल फीलिंग्स आ रही हैं, दैट इज एलोडाइनिया। सो पेन ड्यू टू स्टिमुलस दैट डज नॉट नॉर्मली प्रोवोक पेन, दैट इज एलोडाइनिया। तो प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस डिफरेंट डिजीजेस में, डिफरेंट कंडीशंस में पेन की प्रेवलेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हुई, वायरल इन्फेक्शन हुई, उसके साथ अंडरलाइन नर्व्स अफेक्ट हो सकती हैं, तो वो परसिस्ट कर सकती हैं 8% के केसेस में। तो 100 में से 100 पेशेंट को लेट्स सपोज हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन हुई तो 8 लोग 100 में से पेन के साथ परसिस्ट कर सकते हैं, दैट इज वेरी डिसेबलिंग पेन। डायबिटिक न्यूरोपैथी वेरी मच कॉमन, टाइप 2 डायबिटीज जिसमें आपके स्मॉल फाइबर, स्मॉल नर्व्स पेरिफेरीज की, एक्सट्रीमिटीज की, हाथ पांव की मुतासर होती हैं। 26% दैट इज अ ह्यूज नंबर वो मुतासर होती हैं, पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं। लो बैक नर्व रूट पेन पैथोलॉजी है, अक्सर आजकल हमारे सिटिंग पोस्चर की वजह से, लंबी ट्रैवलिंग की वजह से, नॉर्मल पोस्चर की वजह से, लॉन्ग सिटिंग की वजह से, लाइक बैंकर्स हैं वो सुबह से शाम तक बैंक में बैठते हैं, चेयर और टेबल सेटिंग वाली जॉब है, उसके साथ नॉर्मल पोस्चर होता है, नर्व कंप्रेस हो सकती हैं, उसके साथ 10 to 17% पेशेंट लो बैक पेन के साथ ड्यू टू रोड कंप्रेशन प्रेजेंट कर सकते हैं। So ये different, this is the graphical presentation of the different types of pain. Prevalence that is trigeminal neuralgia है, HIV associated pain हो सकती है, that is much painful, post stroke pain हो सकती है, that is central cause, phantom limb pain, amputate हो गया limb, उसके एंड पे जो ब्रांचेस होती हैं, abnormal sensations of pain है, इसमें ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्रेन मैटर है, स्पाइनल कॉर्ड मैटर है, डीमाइलिनेट होना शुरू हो जाता है, उसके साथ पेन आ सकती है। रिफ्लेक्स सिंथेटिक डिस्ट्रॉफी, कहीं पर इंजरी हुई और जब रीइनर्वेशन होती है तो स्प्राउट्स जो बनते हैं रीइनर्वेशन में नर्व्स के वो कोई एक सीधी लाइन में नहीं जाते, कोई इधर जाएगा, वो राइट लेफ्ट निकल जाएगा, उसके साथ जो पेन होती है रिफ्लेक्स सिंथेटिक डिस्ट्रॉफी पेन होती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई वो पेन के साथ प्रेजेंट कर सकती है। कैंसर रिलेटेड पेन वेरी मच डिसेबलिंग पेन, जिसके लिए हमें हाई डोज ओपियाइड एनाल्जेसिक चाहिए होते हैं। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजी जिसमें हमने बात की है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जो कि पेरिफेरल नर्व्स को अफेक्ट करती है। टाइप 2 डायबिटीज 26% प्रेवलेंस है टाइप 2 डायबिटीज में पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन।
Again, the repetition of slide. So a little bit manifestation and presentation of different types of pain, neuropathic pain, like trigeminal neuralgia. पेन कहाँ होगा? ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे चेहरे पे एक साइड पे राइट एंड लेफ्ट साइड पे दोनों साइड पे ट्राइजेमिनल नर्व मौजूद है। 3 ब्रांचेज हैं जिसमें ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, मैक्सिलरी ब्रांच है, मैंडिबुलर ब्रांच है। किसी भी ब्रांच में पेन हो सकती है, लेकिन यूजुअली मैक्सिलरी मैंडिबुलर में होती है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में। स्टेपिंग और डिसेबलिंग पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा और चंद सेकंड के लिए होगी, बार बार होगी लेकिन चंद सेकंड। पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया यूजुअली जो यूनिलैटरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया की और ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व उसमें प्रेजेंट करती है आमतौर पे इधर माथे की तरफ। दोस्तों इन्फेक्शन हुई और उसके बाद पेन या इस एरिया में किसी भी साइड पे राइट या लेफ्ट। पेरिफेरल नर्व इंजरी पेन, पेरिफेरल नर्व इंजरी हुई है उसके बाद पेन रहेगा ट्रॉमा कंप्रेशन की वजह से। पोस्ट एम्पुटेशन पेन हो सकती है, मिसिंग बॉडी पार्ट है वहाँ पे उसके एंड्स पे। पेनफुल पॉलीन्यूरोपैथी, डिफरेंट डिजीजेस हैं जिसमें आपको न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें जीबीएस है या सीआईडीपी या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी माइग्रेटिक पॉलीन्यूरोपैथी पेनफुल होती है। जीबीएस पेनफुल नहीं होता, सीआईडीपी पेनफुल न्यूरोपैथी होती है। पेनफुल रेडिकुलोपैथी, रेडिकुलोपैथी मीन जब आप यहाँ से नर्व्स का ओरिजिन है, रोड्स निकल रही हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड से आगे, रोड्स उसके आगे तक नर्व्स बनती है मोटर एंड सेंसरी, तो रोड लेवल पे उसको कहते हैं रेडिकुलोपैथी। जिस तरह लोअर बैक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो अक्सर लंबर डिस्क प्रॉब्लम होता है, डिस्क डिजीज होती है, डिस्क प्रोलैप्स होता है, उसके साथ रूट्स कंप्रेस होती हैं तो उसको हम रेडिकुलोपैथी पेन कहते हैं। और बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड डिजीज के साथ प्रेजेंट कर सकती है। स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हुई उसके साथ डेफिनेटली रूट्स एंड आगे बनने वाली नर्व्स अफेक्ट होंगी। स्ट्रोक के साथ सेंट्रल काज उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं पेन। स्ट्रोक हुआ उसके साथ पेशेंट लंबे अरसे के लिए बेड बाउंड हो जाता है, नर्व कंप्रेशन होती है, पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। स्पाइनल कॉर्ड या स्ट्रोक दोनों मसले हम उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लोकेशंस वाइज न्यूरोपैथिक पेन है जिनको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है अगेन रिपीट करूंगा, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, शॉर्ट टाइम के लिए होगी, चंद सेकंड के लिए होगी, डिसेबलिंग होगी और रेपिटेशन के साथ आएगी, बार बार होगी, लेकिन एक एपिसोड फ्यू सेकंड्स के लिए लास्ट करेगी। तो ये टर्मिनोलॉजी है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, पता होना चाहिए। हाइपोएस्थेसिया क्या है कि रिड्यूस परसेप्शन ऑफ पेन ड्यू टू नॉन पेनफुल स्टिमुलाई। हाइपोएस्थेसिया क्या है? रिड्यूस परसेप्शन ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई। तो ये डिफरेंस है हाइपोएस्थेसिया में एंड हाइपोएल्जेसिया में। हाइपोएस्थेसिया नॉन पेनफुल स्टिमुलाई के लिए होगी। थर्मोएनेस्थेसिया हीट का पता नहीं चल रहा, पाँव जल सकता है, इसके लिए इसको मैनेज करना जरूरी है। ये नेगेटिव सिम्टम्स हाइपोएस्थेसिया, हाइपोएल्जेसिया, थर्मो हाइपोएनेस्थेसिया, एस्थेसिया। पॉजिटिव सिम्टम क्या होंगे? जिसमें उसको पिन एंड नीडल सेंसेशंस आएंगे, लाइक पैरास्थेसियाज हो रहे हैं, नॉन पेनफुल टिंगलिंग सेंसेशंस है, ट्रांजिशनल पेन हो सकती है, शूटिंग पेन दैट अकर इंटरमिटेंटली। सुपरफिशियल पेन है कि स्किन में बर्निंग सेंसेशन हुई जा रही है। एलोडाइनिया, जिस तरह हमने पहले बात की कि नॉन पेनफुल स्टिमुलाई, नॉर्मल गैजेट्स से अगर आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाए, एलोडाइनिया, इसका दिस इज कॉल्ड एलोडाइनिया। हाइपरएल्जेसिया, पेन रिड्यूस बाय टिपिकली नॉन पेनफुल स्टिमुलाई। और सुमेशन है लेस इंटेंसिटी का स्टिमुलस हो लेकिन बार बार लगेगा तो सुमेशन हो जाएगी, पेन करना शुरू कर देगा। सो व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ पेरिफेरल नर्व डैमेज? इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। पेशेंट पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है कि माइल्ड वीकनेस उसको हुई है, प्लेजिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है कि टोटल लिम्ब वीकनेस होगी, अगर एक नर्व डैमेज हो गई है टोटल लिम्ब वीकनेस होगी, नर्व प्रेस हुई है पैरालिसिस होगा तो माइल्ड वीकनेस होगी, कुछ ना कुछ पेशेंट फंक्शन इंटैक्ट रहेगा लेकिन नॉर्मल नहीं होगा। अगर हम पावर को ग्रेड करें तो 5/5 नॉर्मल पावर है तो पेशेंट हो सकता है 3/5 या 4/5 के साथ प्रेजेंट करे। पैरालिसिस में कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन होगा। हाइपोटोनिया के साथ लोअर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन है, जिस तरह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबोसेक्युलर प्लेक्सस या उनसे बनने वाली नर्व्स या मसल इफेक्ट होंगे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होगा, हाइपोटोनिया के साथ पेशेंट इफेक्ट प्रेजेंट करेगा। टोन डिक्रीज हो जाएगी, फ्लैसिड
वीकनेस के साथ पेशेंट करेंगे। रिफ्लेक्सिया अगेन पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रेजेंटेशन है, रिफ्लेक्स डिप्रेस हो जाएंगे या अपसेट हो जाएंगे। और ये हाइपोटोनिया और रिफ्लेक्सिया, these are the presentation of peripheral nervous system. If there is injury to the central nervous system, तब क्या होगा? हाइपरटोनिया, हाइपररिफ्लेक्सिया, आप गोइंग प्लांटर्स, आप हो जाएंगे चीजें। मस्कुलर एट्रोफी या वेस्टिंग ऑफ द मसल, अगेन फीचर ऑफ द लोअर मोटर या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज। सेंट्रल में मस्कुलर एट्रोफी नहीं होती अनलेस पेशेंट इज बेड बाउंड एंड after a prolonged period of bedbound status, there is disused atrophy, mild to moderate intensity, वो एक अलग कैटेगरी है। Otherwise, there will be no wasting in case of central cause, brain or spinal cord. In case of peripheral cause, there will be wasting of the muscles. So, very important कि nerve compression syndrome क्या है? बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ओपीडी में कि जी मेरा हाथ सुन्न हो गया। तो हाथ सुन्न होने की वजूहत में रेडिकुलोपैथी हो सकती है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, उससे हाथ सुन्न हो रहा है, या क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के अल्नर नर्व आपकी प्रेस हो रही है एल्बो लेवल पे, या कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम इज वेरी मच कॉमन इन एनी केस वेयर देयर इज अ मैक्सिमम यूज ऑफ और रेपिटेटिव यूज ऑफ रिस्ट, लाइक इस तरह जो टाइपिस्ट होते हैं, टाइपिस्ट या लेडीज घर में होती हैं, क्रोशिया सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, या इवन खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, जिसमें रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट बार बार हो रही है, तो उससे मीडियन नर्व इरिटेट होती है और कार्पल टनल सिंड्रोम नमनेस ऑफ द हैंड्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। काजेस क्या है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की? देयर मे बी ट्रॉमेटिक और टॉक्सिक और मेटाबॉलिक काजेस। ट्रॉमा किसी भी वजह से हो सकता है। टॉक्सिक मेटाबॉलिक काजेस क्या है? लाइक डायबिटीज, अल्कोहलिक यूजर्स, माइलॉइड एंजियोपैथी, यूरेमिया, पोरफायरिया, हैवी मेटल, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं हैवी मेटल यूज हो रही है, उनको इनहेल कर रहे होते हैं बार बार फ्यूम्स की सूरत में, उससे हो सकता है। डिप्थीरिया टॉक्सिन, दैट इज द कॉज। ग्रुप बी vitamin B deficiency, especially vitamin B12 deficiency, vitamin 6 deficiency, vitamin B12 deficiency is common in diabetics, इसके साथ वो hand and feet numbness के साथ आते हैं। B6 deficiency can occur in patients taking ATT, इसलिए हम उनको देते हैं Vita6, that is the vitamin B6 to prevent peripheral neuropathy. And there are certain drugs like amiodarone, nitrofurantoin, isoniazid, vincristine, ये indirectly आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती हैं ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी। नाइट्रोफुरेंटाइन एंटीबायोटिक है, ध्यान से दीजिए। आइसोनाइजेड वन ऑफ द एटीटी एंटीट्यूबरकुलर थेरेपी में से एक ड्रग है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6, इसलिए B6 देना जरूरी होता है एटीटी के साथ। विनक्रिस्टिन ड्रग है जो कीमोथेरेपी में यूज होती है, उसके साथ कॉमन है। तो हमें फिर एडिशनल B12 डेफिशिएंसी और B6 डेफिशिएंसी को बचाने के लिए ऊपर से चीजें देना पड़ती हैं, तो प्रिवेंट न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में भी इन्फ्लेमेटरी लाइक इन्फेक्शन हो गई, लेप्रोसी, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, HIV, हेरिडिटरी हो सकती है लाइक शार्कोमेरिटल डिजीज, इस्कीमिया हो सकता है कि आपका वेदर नर्वोरम जो कि सप्लाई करता है आपको नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई है उसको वेदर नर्वोरम कहते हैं, वो मुतासर हुई है, नर्व इस्कीमिक हो जाएगी और उसके साथ न्यूरोपैथी हो सकती है। मैलिग्नेंसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स में लाइक मोनोक्लोनल गैमोपैथी एंड अदर। रेडिएशन थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को कैन कोई ट्यूमर था किसी को, वो रिमूव हुआ, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी मिली या सिर्फ रेडिएशन मिली उसको, तो आफ्टर रिलेटेड पीरियड ऑफ 6 months to 1 year या मोर देन 1 year उसके बाद फिर नर्व डैमेज होना शुरू हो जाती है, न्यूरोपैथी के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ये कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट लंप रिमूव कर दिया गया, रेडिएशन थेरेपी टू प्रिवेंट टू डैमेज टू कवर द नेस्ट जो रह जाते हैं पीछे, उनके लिए रेडिएशन थेरेपी करते हैं। तो पेशेंट 1 साल या 1.5 साल 2 साल के बाद उस साइड के अपर लिम्ब की वीकनेस, नमनेस, पेन के साथ प्रेजेंट करता है। वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। कार्पल टनल सिंड्रोम जैसे मैंने आपको बताया कि एनी वर्क दैट काजेज द रेपिटेटिव यूज ऑफ रिस्ट, उससे हो सकता है, या डिफरेंट डिजीजेज में मीडियन नर्व कंप्रेस हो सकती है रिस्ट पे, लाइक डायबिटीज, प्रेगनेंसी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपोथायरायडिज्म वेरी कॉमन काज, रेपिटेटिव रिस्ट मूवमेंट्स किसी भी काम की वजह से प्रोफेशनल में होता है लाइक टाइपिस्ट,
सस्टेन्ड हैंड पोजीशन, ऐसे आपने कलाई ऐसे मोड़ के रखी हुई है, उससे हो सकता है। अमाइलोइडोसिस में एक्रोमेगली डिजीज है, उसमें मल्टीपल माइलोमा में और टेनोसाइनोवाइटिस डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है। पेशेंट पैरालिसिस और नमनेस पेन के साथ प्रेजेंट करता है मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन में। मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी सेंसरी, थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को एंड लेटरल पार्ट ऑफ द रिंग फिंगर को। इनमें आपको पेशेंट बताएगा कि मुझे ये और आधे रिंग फिंगर की यहाँ नमनेस होती है या उसको हार्डनेस फील होगी, स्पेशली एट नाइट। सोया होगा, हाथ है उठ के बैठ गया, हाथ ऐसे झटकना पड़ता है, या थोड़ी देर फोन सुना हाथ सुन हो गया, या कोई हैवी वजन खाते हैं थोड़ी देर बाद हाथ सुन हो जाता है। तो ये मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यू टू कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके लिए दो टेस्ट भी करते हैं जिसमें टेनल साइन और फैलन साइन होता है कि वो आप इधर रिस्ट जॉइंट पे बार बार टैप करते रहते हैं और फिर उंगलियां मीडियन नर्व डिस्ट्रीब्यूशन वाली सुन हो जाती हैं। What is cubital tunnel syndrome? Cubital tunnel syndrome है कि ulnar neuropathy at elbow। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि ulnar nerve जो है लोअर कॉर्ड से निकलती है ब्रेकियल प्लेक्सस की CRT1 नर्व डिस्ट्रीब्यूशन रूट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और मीडियल साइड ऑफ द आर्म के साथ आर्म में ट्रेवल करती है डाउनवर्ड टुवर्ड्स हैंड, और इन द मिडल ऑफ द आर्म मीडियल मेलियरस के बिहाइंड ये ट्रेवल गुजरती है और फिर फोर आर्म में आ जाती है। जो आपका मसल है क्यूबिटल टनल जहाँ बनती है उसके दो हेड्स में फ्लेक्सर कार्पियल नर्व उसके दो हेड से ट्रेवल करती है, तो वहाँ एंट्रैप हो सकती है। दैट इज काजिंग द क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। और पेशेंट का मीडियल साइड ऑफ द हैंड एंड फोर आर्म वो अफेक्टेड होगा। जो मीडियल साइड है फोर आर्म की प्लस लिटिल फिंगर एंड मीडियल साइड ऑफ द रिंग फिंगर, इसको सेंसरी सप्लाई देगी अल्नर नर्व, यहाँ पे नर्वनेस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। एक और बड़ी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है कि जो जिन पेशेंट की जॉब होती है ना रिसेप्शनिस्ट की, वो अक्सर टेबल पे कोहनियाँ रख के बैठे होते हैं, कोहनी टेबल पे रख के बैठे होते हैं, ये ऐसा टच करता रहता है हार्ड सरफेस के साथ, या तो चेयर के आर्म के साथ या टेबल के ऊपर, उससे उनको अल्नर न्यूरोपैथी हो जाती है और मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म एंड हैंड की नमनेस के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये चीज़ सबको अवॉइड करनी चाहिए, और जब कोई पेशेंट इस तरह आता है तो उसको ये आपने जरूर एडवाइस करना है कि हार्ड सरफेस के साथ आपका मीडियल एपिकोंडाइल टच नहीं होना चाहिए, कोहनी की अंदर वाली साइड टच नहीं होनी चाहिए। टार्सल टनल सिंड्रोम अनदर एंट्रैपमेंट सिंड्रोम, पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो कि गुजरती है मीडियल मेलियोलस और हील के दरमियान जो स्पेस की होती है उसमें पोस्टीरियर टिबियल नर्व से गुजरती है, वहाँ वो प्रेस हो सकती है ड्यू टू फ्लेबाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकल फ्रैक्चर के साथ। तो पेशेंट टिंगलिंग सेंसेशन एंकल की सोल की या मूवमेंट के साथ नमनेस पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। मोटर पैसेंजर यूजुअली इसमें नहीं होता, आमतौर पर टिंगलिंग और पेनफुल सेंसेशन जस्ट पेशेंट प्रेजेंट करता है। सो हाउ टू डायग्नोज द न्यूरोपैथिक पेन। एक पेशेंट आ गया हमारे पास, मुझे मेरा पाँव सुन हो रहा है या मेरे हाथ सुन हो रहे हैं। अब उसको आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, आइदर दिस इज रेडिकुलोपैथी रोड पेन है, या एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी है, या ये कोई नर्व डैमेज है। तो ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हमें डायग्नोज करना है। पहले तो हम डेफिनेटली हिस्ट्री लेंगे, वेरी गुड टूल, 80% डायग्नोसिस तो हिस्ट्री भी बन जाता है। एंड जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन आर टू कंफर्म द डायग्नोसिस, नॉट टू मेक द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन पे बना लेना है, इस तरह के आपने रिफ्लेक्सेस डेवलप करने हैं कि पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट है, हिस्ट्री आपने ली कैसी पेन है, क्या किसी डर्माटोमल पैटर्न में है, क्या उसका कोई ट्रॉमा हुआ था उसके साथ है, उसको स्ट्रोक हुआ था उसके साथ है, डायबिटीज है पेशेंट को लॉन्ग टर्म पुअर कंट्रोल उसके साथ है, तो वो आपको आइडिया मिल जाएगा हिस्ट्री के साथ। तो आपने डिसाइड कर लिया कि यस दिस इज न्यूरोपैथिक पेन, तो फिर फर्दर आप एग्जामिनेशन करते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस देखते हैं। हाइपररिफ्लेक्सिया तो नहीं है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टम है, टोन कैसी है, डिक्रीज है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। उसकी सेंसेशन डिक्रीज है तो इसका मतलब है स्टॉकिंग पैटर्न है, तो डायबिटीज में दैट इज कॉमन। तो आपने बना लिया कि यस दिस इज न्यूरोपैथिक पेन। अब उसको कैसे कंफर्म कैसे करेंगे जी? मुख्तलिफ हमारे पास टूल्स हैं जिसमें
बेस्ट टूल तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशनल टूल हैं, लैब टूल्स हैं, उसमें अब नर्व कंडक्शन स्टडीज हम करते हैं, जिसमें मोटर एंड सेंसरी नर्व चेक की जाती है कि उनका अगर हम प्रॉपर वेलोसिटी देखते हैं, लेटेंसी देखते हैं, एम्पलीट्यूड देखते हैं, वो कम आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल है तो इंटैक्ट नर्व, और कम आ रहा है तो नर्व अफेक्टेड है। इसमें दो तरह की होती है कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज होती है, जिसमें आपकी कोटिंग मुतासर हो रही है, माइलिन शीथ मुतासर हो रही है, उसमें वेलोसिटी कम हो जाती है, और अगर एक्सॉन मुतासर हो रहा है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाती है। तो दिस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड टेस्ट, रोड पोटेंशियल्स हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज हैं, और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं उसमें हमें नर्व बायोप्सी की जरूरत पड़ जाती है, लाइक शार्को-मैरिटो डिजीज, सीआईडीपी, नर्व बायोप्सी कर सकते हैं, जिसमें थिकनेस ऑफ द नर्व मिलती है और आप कंफर्म कर लेते हैं कि यस दिस इज न्यूरोपैथी। तो गोल्स क्या हैं आखिर ये सारी डिस्कशन का, और फिर सब अबाउट न्यूरोपैथी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथी, सेंट्रल, पेरिफेरल, काजेस। गोल क्या है? अल्टीमेटली गोल है टू रिलीव द पेशेंट। अब रिलीव द पेशेंट उसके लिए हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, हाउ टू मैनेज, उसके हमारे पास स्टेप्स होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेप पे हम ये देंगे, सेकंड स्टेप पे ये देंगे, अंडरलाइन डिजीज है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, सब चीजें आपको माइंड में लेते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें रिग्रेस को, ट्रीट कर सकें पेन को, उससे जिससे पेशेंट की पेन रिड्यूस हो जाए, उसकी फिजिकल साइकोलॉजिकल फंक्शन इंप्रूव हो जाए, और अल्टीमेटली लीडिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज द अल्टीमेटली गोल। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमारा मकसद क्या है? आप सब लोग माशाल्लाह से प्रोफेशनल्स हैं, बेहतरीन अच्छी स्किल्स के साथ हैं, डिफरेंट और गुड प्लेसेस में बैठे हैं टू ट्रीट एंड टू डील द पेशेंट, टू रिलीव द पेशेंट। तो आपने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं भी है, तो कोशिश करें कि एज मच एज पॉसिबल उसको रिलीव दिया जा सके। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स। हाउ टू मैनेज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपने देखा कि डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट काजेज हैं, डिफरेंट अंडरलाइंग डिजीजेस हैं दैट लीड टू द न्यूरोपैथिक पेन एंड न्यूरोपैथी। सो हाउ टू मैनेज, नाउ वी विल कम हाउ टू मैनेज सच केसेस। मैनेजमेंट ऑफ द कॉमन न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम, उसके लिए हमारे पास इफ देयर इज अ सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन, सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन में दो गोल हैं, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है और एक जो है हमारे पास फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में कि पेशेंट एजुकेशन, उसको बताएं कि पेशेंट एजुकेशन, आप उसको बताएं कि एजुकेट करें कि if patient is diabetic and came with neuropathic pain, then teach him or her that you need very good glycemic control। अच्छा glycemic control रखें ताकि आपकी नर्व कम से कम मुतासर हो, और मुतासर तो होनी होनी है, आपने प्रॉन्ग करना है। जो चीज़ें 5 साल में मुतासर हो रहे हैं आप उसको 15 साल में लेके जा रहे हैं, वो गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल के साथ होगा। बाकी उसकी कोई सेटिंग जॉब है जिसमें नर्व कंप्रेस हो रही है, या कोई ऐसी प्रोफेशनल है कि टाइपिस्ट है, तो बताएं कि आपने रिस्क मूवमेंट्स कम रखनी है। तो ये दिस आर पेशेंट एजुकेशन। व्हाट इज फार्माकोलॉजिकल थेरेपी? पेशेंट एजुकेशन के बाद उसको कोई खास रिलीफ नहीं मिला, देन यू हैव टू ऐड और यू हैव टू स्टार्ट मेडिकेशंस, देन हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट। एंटी कन्वर्सेंट्स फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, बहुत अच्छा इनके साथ पेशेंट रिलीफ महसूस करते हैं, बड़ी अच्छी इसके साथ पेशेंट की न्यूरोपैथिक पेन कंट्रोल हो जाती है। Anticonvulsants like gabapentin and pregabalin, these are the anticonvulsants or anti-epileptic drugs, gabapentin and pregabalin, but very good neuropathic pain control medications as well. Tricyclic antidepressants, also first line, very good drugs like amitriptyline. The most using and most studied drug is the amitriptyline. You can start from 25 milligram HS and you can go up to the 300 milligram of amitriptyline. अगर हम gabapentin की बात करें तो you can go up to the 1800 milligram even. Pregabalin up to the 300 milligram, starting from low dose 25 or 50 HS, titrating up according to need, and with the interval of 1 to 2 weeks you can titrate up to the maximum of 300 milligram of pregabalin. Tricyclic antidepressant में amitriptyline most effective. अदर एजेंट्स वीक ओपियाइड आपने देने, ये कोशिश करेंगे पेशेंट को आप वो एडिक्शन पे ना लगा दें। वीक ओपियाइड स्टार्ट किए जा सकते हैं, they are not controlled with anticonvulsants and tricyclic antidepressants like tramadol can be given, and strong opioids usually we use it in chemotherapy and neuropathic pain, chemotherapy induced, radiation induced like morphine, but try to avoid such medications unless there is some pain
control, you have some pain control degree, and you can start and you can monitor it regularly, then you can. Otherwise, try to avoid this from opioids. Lamotrigine, this is again an anti-epileptic or anticonvulsant drug, but very good control it gives for neuropathic pain. And cannabinoids sometimes can be used for multiple sclerosis, but this is again is specialty related. So if you are not a specialist in pain management, then keep on first line and good drugs like gabapentin, pregabalin, amitriptyline, etc. So, what are the painful diabetic neuropathy? Diabetic neuropathy is very much painful. Very huge number of patients come across an OPD. So, how to manage? Again, patient education, optimize glycemic, good glycemic control, proper food care. Food care is very much important in diabetic patients. कहा यह जाता है कि डायबिटिक पेशेंट अपने चेहरे का इतना ख्याल ना रखे जितना अपने पाँव का रखे. डेली अपने पाँव को देखेगा, पाँव के आगे आईना रखेगा, उस आईने में उसका अक्स रिफ्लेक्ट होगा कि कहीं कोई अल्सर, कहीं कोई बॉयल तो नहीं बन रहा जो कि बढ़ जाता है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. डेली देखना और सॉफ्ट, नरम एंड बंद जूता इस्तेमाल करना है डायबिटिक पेशेंट्स में. इसके अलावा अल्टरनेटिव थेरापीज हैं जो कि यूज की जा सकती हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, लाइक ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइसेस छोटी छोटी मिलती हैं. उसके बाद फिजियोथेरापी है, ऑक्यूपेंचर, चाइनीज वे ऑफ टीचिंग टू डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है. इंटरफेरेंशियल थेरापी है, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरापी है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर पेन कंट्रोल इन केस ऑफ डायबिटीज एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट अगेन फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है. फर्स्ट लाइन में एंटीकन्वल्सेंट्स हैं, प्रीगाबलिन एंड गाबापेंटिन. या एसएसआरआई, एसएनआरआई वेरी गुड control in case of diabetes, diabetic neuropathy. Tricyclic antidepressant give very good control in case of diabetic neuropathy. और सेकंड एंड थर्ड लाइन ड्रग तब दी जाती है जब फर्स्ट लाइन की दो ड्रग मैक्सिमम डोज अचीव करने के बाद भी पेन कंट्रोल ना कर पाए, देन आप स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एड ऑन थेरापी, या आप पहले को रिड्यूस करके एड ऑन थेरापी भी कर सकते हैं कि जिसमें आप लो डोज ओपियाइड यूज कर सकते हैं. वेरी स्पेशल केसेस में स्ट्रॉन्ग ओपियाइड यूज किए जा सकते हैं, या फिर जो डीनर्वेशन के लिए और डीसेंसिटाइजेशन के लिए कुछ क्रीम्स हैं लोकल, जिसमें कैप्साइसिन क्रीम है, कैप्सिडोल के नाम से यूजली अवेलेबल है, या लिडोकैन जेल है, ये आप लगा सकते हैं जो कि डीसेंसिटाइजेशन और कर देती हैं और रिड्यूस पेन सेंसेशन टू द पेशेंट्स. So this I took a little bit more time on this slide because this was very important to know how to manage neuropathic pain. So this is a little bit repetitive. इसमें जो नई बात है वो ये है कि आपने कम से कम कितना टाइम देखना है टू बी इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव का डिसीजन लेने के लिए, फैसला करने के लिए कि ये इफेक्टिव है या नहीं. कम से कम 8 वीक्स आप देखेंगे. नर्व का मामला है, इट टेक्स टाइम बिकॉज there are some underlying diseases, there is damage to the nerve, and its growth is 1 millimeter per day, so very much slow growth of the nerve in case of damage to the nerve. So 8 weeks कम से कम आपने देने हैं. अगर 8 weeks में पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है, रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, then well and good. Otherwise you have to change or go to add-on therapy. ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ख्याल रखना है इस चीज का. So trigeminal neuralgia, very important, very disabling condition. Patient come with stomach pain on one side of the face that remains for seconds, but frequency in a day maybe 50 times a day. Patient पुराना पेशेंट आएगा, 6 महीने से मेरे चेहरे पे दर्द होता है, चंद सेकंड के लिए रहता है लेकिन बार बार होता है, ये प्रेजेंटेशन होती है. तो उसमें आपने अगेन पेशेंट एजुकेशन करनी है. सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं पेशेंट को के बाद का दिया होता है. ट्राइजेमिनल नर्व जो ब्रेन स्टेम से उसका ओरिजिन है, ब्रेन स्टेम के पॉन्स पार्ट से, तो उसका ओरिजिन के बाद जब उसके कॉर्टिकल फाइबर्स ब्रेन कॉर्टेक्स से गुजर रहे होते हैं तो साइड पे कोई एन्यूरिज्म, बार बार एन्यूरिज्म जो है उसको अपने पल्सेशन के साथ इरिटेट कर रहा होता है, तो उस केस में सर्जरी होती है कि वो एन्यूरिज्म को क्लिप किया जाता है और पेशेंट रिजॉल्व कर जाता है, उसके सिम्टम ठीक हो जाते हैं. फार्माकोलॉजिकल थेरापी क्या है कि कार्बामेज़ेपिन वेरी इफेक्टिव, ऑक्सकार्बामेज़ेपिन दैट इज द आइसोटोप ऑफ कार्बामेज़ेपिन, वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पेन.
और रिफ्रैक्टिव केसेस हो तो फिर सेकंड लाइन पे आना पड़ता है। सेकंड लाइन में आप क्या क्या आपके पास ऑप्शन हैं, बैकलेन है, सेंट्रल रिलैक्सेंट है, lamotrigine anticonvulsant, very good drug for pain control, neuropathic pain control and for trigeminal neuralgia also. Gabapentin and pregabalin, very good drugs that can be used add-on therapy or can be used alone as well. So here are some studies for the neuropathic pain management and the role of different drugs. So yeah, this is the latest. These are latest studies on the neuropathic pain management 2019. कि उन्होंने देखा था efficacy of pregabalin for the treatment of neuropathic pain. Japanese population में was moderate to severe neuropathic cases में उन्होंने pregabalin का study की और बहुत अच्छे result मिले थे. Very good efficacy for relief and even sleep improvement for the moderate to severe cases, not mild. So this is very good study and very good results and very good outcome. Pregabalin is very good effective, very much effective for neuropathic pain of moderate to severe intensity. So this is these are the study results that use placebo and pregabalin showed very good result for moderate to severe pain management in case of neuropathy. Another study pregabalin for neuropathic pain in adults 2019 में ये trial हुआ था और जिसमें very good almost 30 to 50% improvement in case of moderate to severe neuropathic pain with the use of pregabalin as compared to placebo. Again, a study what are the possible mechanisms by which pregabalin acts and relieve the pain. There are different mechanisms like inhibition of the voltage-gated calcium channel. इससे क्या होगा? ऐसे ही होगा कि रिडक्शन ऑफ द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कम होगा, उससे आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इनहिबिट हो जाएगी और पेशेंट रिलीफ महसूस करेगा। बार बार उसको जो डीपोलराइजेशन होती है और उसमें जो करंट फ्लो है वो कम होगा, पेन कम होगी। सेकंड है कि मॉड्यूलेट करती है पोटेशियम चैनल कंडक्टेंस को, मॉड्यूलेट करती है एक्साइटेटरी अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर को और इन्फ्लेमेशन को मॉड्यूलेट करेगी, जिससे पेन रिलीफ मिलेगा इन केस ऑफ न्यूरोपैथिक पेन विद द यूज ऑफ pregabalin. So this is the mechanism how it acts. Again, gabapentin versus pregabalin for the treatment of neuropathic pain. ये स्टडी हुई थी, क्रॉसओवर स्टडी थी 2014 में और so both are in short both are effective, pregabalin and gabapentin both are effective for neuropathic pain. जो मैं अगर पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं तो I more believe on pregabalin. Both are good, but I personally like pregabalin because it gives more good results. So this is the later 2017 में हुआ था latest safety evidence and clinical implication for the management of neuropathic pain, जिसमें उन्होंने बताया कि diabetic neuropathy हो, neuropathy हो, किसी भी वजह से traumatic हो, spinal cord हो, तो very good result, very good safety profile. Heavy doses पे if a patient is acute interval syndrome है या कोई ischemic heart disease का patient है या उसको widening of the क्यूरास complex का कोई patient है, उसमें heavy doses you have to avoid pregabalin में, otherwise 50, 100, 200 no issue pregabalin के साथ. Heavy doses like 300 और 300 से भी ऊपर आपको जाना पड़ता है, although कि most recommended dose maximum dose is 300. So कोशिश करें कि 150 तक ischemic heart disease के patient में रहें, उससे ऊपर ना जाए. If there is a patient that doesn't have any history of ischemic heart disease, then you can go up to the maximum dose. 300 maximum dose of pregabalin and 1800 of gabapentin can be used. So this was the brief discussion about the neuropathic pain, its causes, presentation and management and different studies and research evidence for its efficacy. So thank you very much for your listening, for your attentiveness, and any queries, questions, I am here to discuss your queries. Thank you very much, Dr. Ghulam Shabir Sahab, for very nice and very comprehensive presentation on the given topic. No doubt, topic is very vast और इसमें और बहुत सारे चीजें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर सर बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी चीजों को हाईलाइट किया कि जैसे डॉक्टर साहब आपने बात की कि हम न्यूरोपैथीज में हम लोग नॉर्मली सिर्फ विटामिन B6 को रिकमेंड करते हैं. सो सर व्हाट अबाउट विटामिन B1 एंड B12 रोल टू ट्रीट न्यूरोपैथीज
रिगार्डिंग डिफरेंट किसी वजह से भी अगर होती है, तो क्या सर कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर है या सिर्फ विटामिन B6 देना ही इज एनफ इन दोस इंडिकेशंस? हमारे क्योंकि जो बहुत सारे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, डायबिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो डायबिटीज के साथ जो विटामिन हो रही है वो B12 है, ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे गैस्ट्रिक पार्ट ऑफ जो इंटेस्टाइन है उसमें हाईली फैक्टर्स के साथ मिलकर B12 अब्जॉर्प्शन करवाता है। डायबिटिक में वो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो डायबिटिक में B12 कॉमन है डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट कोई एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी पे है, कोई उसको पल्मोनरी टॉक्स टीबी हो गई या इवन ब्रेन टीबी, CNS टीबी हो गई, तो उसमें जो आइसोनाइजर्ड है वो B6 करवा रही है। पेशेंट की फिर हम प्रेफर करते हैं कोशिश के B12 दिया जाए। अगर ATT पे है, एंटी ट्यूबरकुलस इसको प्रेफर किया जाता है। पेशेंट है जनरल प्रेजेंटेशन के साथ है, मल्टीपल कोमॉर्बिड है, डायबिटिक भी है, वेल न्यूट्रिटेड भी है, और फिर एक कॉम्बिनेशन देना बेहतर है। B1 की स्पेसिफिक बात करें तो वो ज्यादा अल्कोहल में डेफिशिएंट होता है, तो बीइंग अ मुस्लिम सोसाइटी अलग वजह से हमारे अल्कोहल कंजम्पशन नहीं है या कोई गलती से वो लेने बैठता है, तो अगर तो कोई डिजीज जनरल प्रेजेंटेशन है आपकी बेहतर होगा। जी राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू।